اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jameel Rathod. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 26 to 28 of Surah Sad of the 23rd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Ya Dawood
इन्ना इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दि फहकुम बैनन नासी बिल हक़्क़ि वला तत्तबि'िल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यज़िल्लून अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन बिमा नसू यौमल हिसाब वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen. And then we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation. In the end, we also give you the brief explanation of these holy verses. So this is a very, very important program in which we give you the translation, we give you recitation, as well as we also give you the explanation of the Holy Quran. So keep on watching this program and stay with us. Ya Dawood, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baynan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah.
या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नासि बिल हक़ फहकुम बैनन नासि बिल हक़ वला तत्तबिइल हवा फयुज़िल्लक अन सबीलिल्लाह। ए दाऊद, हमने मुकर्रर किया है आपको अपना नायब ज़मीन में, बस फैसला किया करो लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ और न पैरवी करना ख्वाहिश नफ्स की, वो बहका देगी तुम्हें राह अल्लाह से। O Dawood, undoubtedly we've made you a vicegerent in the earth. Therefore, order between mankind with truth and follow not desire. Otherwise, it would cause you to go astray from the path of Allah. इन्नल्लज़ीन यज़िल्लून अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुम बिमा नसू यौमल हिसाब। बेशक जो लोग भटक जाते हैं राह अल्लाह से, उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने भुला दिया था यौम हिसाब को। In English, verily, those who go astray from the path of Allah, there's for them a severe torment, for that they have forgotten the day of reckoning. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار। In Urdu, और नहीं पैदा किया हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है बेफ़ायदा, ये तो कुफ़ार का गुमान है, बस बर्बादी है कुफ़ार के लिए आग के अज़ाब से। In English, and we have not made the heavens and the earth and what is in between them in vain. This is the thought of the infidels. Therefore, woe is to the infidels because of the fire. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ।
अम नजअलुल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति कल मुफ्सिदीन फिल अर्द अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार। इन उर्दू, क्या हम बना देंगे उन्हें जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन लोगों की मानंद जो फसाद बर्पा करते हैं जमीन में, या हम बना देंगे परहेजगारों को फाजिरों की तरह? In English, shall we make those who have believed and have done good deeds like those who spread mischief in the earth, or make the pious ones like wicked disobedience? नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक, उसका आगाज़ या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द से हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए दाऊद, हमने आपको भेजा है ज़मीन पर नाइब बनाकर, खलीफा बनाकर। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की फजीलत को बयान कर रहा है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ा, उसकी सुन्नत है कि वो जब भी अम्बिया का जिक्र किया करता है तो उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब, उनके महासिन व महामिद और उनकी खूबियों के साथ, उनकी बेहतरीन जो सिफ़ात है उनके साथ ज़िक्र किया करता है। और कहीं पर उनसे अगर अदना तरीन तकाज़े बशरी से अगर कोई ऐसी ख़ताई इज्तिहादी हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी बड़ी खूबसूरत पैराए में बयान करता है। अम्बिया की इहानत और तौहीन मकसूद व मतलूब नहीं हुआ करती। और यही क़ुरआन का हुस्न है कि जब भी किसी नबी की बात की जाती है तो उसकी आज़मत व फ़जीलत के साथ, उसकी शान के साथ उसका जिक्र किया जाता है। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया क़ुरआन में, पहले नबी का, तो कहा फस्जुदू ली आदम, कि तमाम मलाइका ने हज़रत आदम को सजदा किया। अब यहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है, तो फिर वही मौजू है कि हमने जिस तरह आदम को खलीफा बनाया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हमने ज़मीन पर खिलाफत और नियाबत अता फरमाई। तो ये खिलाफत क्या हुआ करती है? हम देखते हैं कि जब तक इस्लाम में ये निज़ाम खिलाफत था तब तक मुसलमान मुस्तकिल बुलंदियों की तरफ जा रहे थे, उरूज की तरफ जा रहे थे। खिलाफत ख़त्म हुई, मुसलमानों के ज़वाल का आगाज़ हुआ और अब तक हम बहाली की तरफ नहीं आ सके। पूरा आलम कुफ्र यकजा होकर हमें ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन ये रब का इनाम और इकराम है और ये इस्लाम का मिजाज है कि जितना इस्लाम को दबाया जाता है इस्लाम उतनी ही तेज़ी के साथ उभरता है। जभी तो किसी ने कहा कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो ये मिजाज इस्लाम है कि आज हम बाकी हैं, अदरवाइज़ ये कि हमारा सफ़र मुस्तकिल इन्हितात और तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। चुनांचे खिलाफत क्या होती है, बादशाहत क्या होती है? खिलाफत ये होती है कि अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, लोगों को सोशल उनके वेलफेयर के लिए काम करना और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक एक इंच भी वो हरकत नहीं किया करते और अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हुकूमत करते हैं लेकिन फ़क्र के साथ, हुकूमत करते हैं लेकिन तहम्मुल बुर्दबारी के साथ, हुकूमत ऐसी करते हैं कि सारे के सारे लोग कहते हैं कि बेशक ये बेहतरीन हुक्मरान है। बज़ाहिर तो हुक्मरान होता है लेकिन दरअसल आवाम का खादिम हुआ करता है, इसे खलीफा कहा जाता है। इसके बरअक्स बादशाह को देखें, बड़े बड़े महल्लात हुआ करते हैं, उसके बड़े बड़े मुजस्समे हुआ करते हैं, बड़ा उसका रोब जलाल हुआ करता है, वो रियाया पर जुल्म व सितम किया करता है, रियाया के टैक्सेस पर अपनी बादशाहत को कायम रखता है। ये बादशाहत है। खिलाफत तो बड़ी आला चीज़ है। आज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिलाफत को बयान किया जा रहा है। उसके बाद अल्लाह फरमाता, ज़मीन व आसमान को हमने बेकार और अब्स पैदा नहीं किया। अब ज़मीन के कितने फ़ज़ाइल हैं ये सारे के सारे दुनिया के उक़ला और सारे के सारे अक़लमंद जानते हैं। आसमान के क्या फ़वाइद हैं आज की साइंस उसको भी वाज़ेह कर रही है। फिर अल्लाह फरमाता है कि जब आसमान और ज़मीन हमने बेकार नहीं बनाए तो फिर तौहीद और शिर्क जो भी है वो भी यकसा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि शिर्क बेकार है तो तौहीद भी बेकार है, नहीं। अल्लाह फरमाता है मोमिन जो तौहीद का फॉलोअर होता है और जो काफिर या मुशरिक
जो कि अल्लाह की बारगाह में शिर्क करता है, अल्लाह फरमाता है उनका अंजाम यकसा नहीं होगा। मोमिन को हम जन्नत अता फरमाएंगे, मुशरिक को दहकते हुए शौले अता फरमाएंगे। ये वो मज़ामीन है जो अल्लाह इन आयात में बयान कर रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इन क़साइस अंबिया से हमें एडमोनिशंस, पंदो निसाए और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।